یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی سال کے بعد مجھے ملا ہے، بہت محنتوں کے بعد یہ نسخہ مجھے ملا ہے۔ اس میں ہم نے کئی پیسے خرچ کیے، کئی استادوں کو ڈھونڈا، لیکن ایسا نسخہ مجھے نہیں مل رہا تھا جو بالکل کلیئر سونا بن سکتا ہے۔ پہلے تو چاندی بنانا ہے آپ کو، چاندی کے بعد پارے کی چاندی کے بعد آپ کو سونا بن جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، کچھ دن پہلے ہم نے ایک شارٹس اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارے سے خالص پارے سے خالص چاندی کس طرح سے بنائی جاتی ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا یقیناً وہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے۔ تو چلیے آج ہم استاد صاحب سے اس پارے کو چاندی بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی سال کے بعد مجھے ملا ہے، بہت محنتوں کے بعد یہ نسخہ مجھے ملا ہے۔ اس میں ہم نے کئی پیسے خرچ کیے، کئی استادوں کو ڈھونڈا، لیکن ایسا نسخہ مجھے نہیں مل رہا تھا جو بالکل کلیئر سونا بن سکتا ہے۔ پہلے تو چاندی بنانا ہے آپ کو، چاندی کے بعد پارے کی چاندی کے بعد آپ کو سونا بن جائے گا۔ بالکل تجربہ شدہ ہے، لیکن احتیاط تدبیر آپ کو اپنانی ہے، احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اگر احتیاط سے نہ کیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا اور یہ وقت بھی ضائع ہو جائے گا۔ کئی سالوں کے بعد ایسا نسخہ جو آپ کریں گے تو آپ کا بالکل دل خوش ہو جائے گا۔ جو سالوں کے بعد سالوں سے آپ پیسے ضائع کر رہے تھے، آپ کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے کرنا کیا ہے کہ اس میں چیزیں ہیں کچھ ایسی، مرکری بھی کہتے ہیں، پارا بھی کہتے ہیں۔ آپ ایسے کریں کہ 10 تولہ پارا لے لیں، 10 تولہ پارا لے لیں۔ پہلے آپ کو میں پارے کی مصفہ کرنے کی ترکیب بتاتا ہوں۔ رائی 10 تولے لے لیں، پارا مرکری کچا یہ 10 تولے لے لیں۔ پہلا مرکری کو چینی کے کھرل میں ڈال دیں اور پارے کو بھی کھرل میں ڈال دیں، چینی کے کھرل میں ڈال دیں۔ اس کی خوب پسائی کریں۔ جب یہ ایسے طریقے سے ہو جائے کہ پارا اور رائی بالکل آپس میں مل جائیں اور رائی کالی ہونے لگے، کالی ہو جائے، کیونکہ پارے کے اندر جو کچرا ہوتا ہے اب یہ کچرا بھی صاف کرے گی اور اس کو بھوکھا بھی پارے کو یہ رائی کرے گی۔ یہ سمجھ رہے آپ کو، رائی میں ایسے نہیں بتا رہے، رائی میں کوئی قدرتی اثر ہے کہ اس پارے کو بھوکھا بھی کرے گی اور جو پارے میں کچرا ہے پارے کا کچرا بھی ختم کرے گی۔ اب پارے میں اور رائی کو کھرل کرتے کرتے جب رائی کالی ہو جائے، بالکل کالی ہو جائے گی، تو اس میں سرکہ انگوری ہو، سرکہ خالص ہو، سرکہ سادہ ہو، کوئی بھی سرکہ ہو اس میں ڈال دیں۔ اتنا ڈالیں کہ یہ بالکل، یعنی کہ اس میں 5-6 تولے ڈال دیں، ضروری نہیں کہ 10 تولے ڈالیں آپ۔ سرکہ ڈال کر اس کو خوب کھرل کریں۔ اب یہ جب سرکہ ڈالیں گے تو یہ رائی آپ کی ایسی ہو جائے گی، ملم نما ہو جائے گی، جیسے کہ گریس ہو جاتا ہے۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے آپ کو، جب یہ پارا اس میں گم ہو جائے گا، آپ کو پارا نظر بھی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے کہ ہمارا پارا ضائع ہو گیا، لیکن ان میں اندر پڑا ہے پارا۔ اب اس کو صاف کرنا ہے۔ پتیلے لے لیں، پلاسٹک کے 2 ہو یا 3 ہو، کسی میں 1-2 کلو پانی پڑتا ہو، کسی میں 3 کلو پانی پڑتا، 2 پتیلے لے لیں، 3 لے لیں تو بہتر ہے۔ ابھی کھرل بڑی ہونی چاہیے، اسی کھرل میں پانی ڈال دیں، سادہ پانی ڈال دیں، نلکے کا پانی ڈال دیں یا موٹر کا پانی ڈال دیں، پانی صاف ہونا چاہیے۔ اور پانی اتنا ڈالیں کہ پانی میں یہ آپ پھر دوبارہ کھرل کریں گے۔ یہ جو پانی میں کھرل کریں گے تو رائی آپ کی پانی میں تیر کر آ جائے گی، پارا جو ہے آپ کا نیچے بیٹھ جائے گا۔ عموماً
अनजान आदमी जो हैं इस पारे को ज़ाया कर देते हैं। जो राई में अभी शामिल है पारा, ऐसे न समझो कि थोड़ा पानी हमने डाला, इसको राई को निकाल दिया। जो राई निकाल रहे हैं आप, इसमें राई के में अंदर अभी पारा है, मौजूद है। जो अनजान आदमी हैं वो पारे को ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, आप पानी ज़मीन पर न डालें, फर्श पर न डालें, प्लास्टिक के पतीले में डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके सफ़ा मुसफ़ा करते रहें, थोड़ी थोड़ी राई निकालते रहें। ऐसे फर्श में ना डालें क्योंकि इसमें अभी पारा है। अगर ज़मीन पर डाला तो आपका पारा इसमें कम होकर आप देखेंगे, बाद में वज़न करेंगे तो पारा, कई बार मैंने नए नए लोगों को देखा तो आध यानी 5 तोला है तो 5 तोले पारा मिलता है, 5 तोले पता नहीं कहाँ चला गया। इसीलिए मैं पानी के पतीले, प्लास्टिक के पतीले कह रहा हूँ, पानी उसमें डालना है। अभी आप ऐसा करें, पानी आहिस्ता आहिस्ता करके खारिज करते जाएं, खरल में पानी डालें, फिर थोड़ा थोड़ा इसको मल लें। मलते मलते जब राई ऊपर आ जाए तो इस राई को प्लास्टिक में पतीले में डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आप जब सारी राई खरल से निकाल लेंगे तो आप देखेंगे रेत की तरह या मलम की तरह, जो मलम होती है, इसी तरीके से आपको नीचे पारा नज़र आएगा। लेकिन आप समझोगे कि पारा नहीं है, कुछ मैल है, लेकिन ये पारा है। पारा आपका मुसफ़ा किया गया। अभी जो पानी डाला है आपने पतीले में, इधर तो खरल में जो पारा आ गया, लेकिन पारा अभी अपना जो है उधर भी है, प्लास्टिक के जो पतीला में पानी डाला है उधर पारा पड़ा है उसी राई में। अभी उसी पानी को हाथों से मल लें, ऐसा मलें उसी पानी को कि ये जो राई है उसकी ऊपर आ जाए, और जो पारा है वो आपके हाथों में भी लगा होगा। आप रेत समझेंगे लेकिन वो पारा होगा। लेकिन इसके जो हाथ हैं, आपने हाथ हैं वो उसी पानी से ही धो लें, साफ कर लें। ऐसे आप बाहर दूसरे पानी से ना हाथ धोएं, क्योंकि आपके हाथों में पारा लग सकता है। वो अगर दूसरे पानी से बाहर हाथ धोए तो आपका पारा ज़ाया हो जाएगा। अभी इसको मलते मलते ऐसा मलें पानी के अंदर राई को कि जो भी राई के अंदर फंसा हुआ पारा है वो राई से अलहदा होकर नीचे पतीले में बैठ जाए और राई तैर कर ऊपर आ जाए। जब ऐसा हो जाए तो ये अभी भी कुछ न कुछ पारा आपका राई में फंसा हुआ है, ये दूसरे पतीले में डाल दें। ये जो पानी है दूसरे पतीले में पहले तो निकाला, खरल से एक पतीले में डाला और दूसरे पतीले में अब पानी वो डाल रहे हैं। इसी में अभी पारा है, फंसा हुआ है। अब अभी आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जो राई है तीसरे पतीले में डाल देंगे। नीचे आपको कहीं न कहीं कोने में पड़ी हुई रेत जैसा, मैली रेत जैसा कुछ न कुछ दिखाई देगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके वो पारा आपको खरल में रखना पड़ेगा। अब तीसरा पतीला जो बड़ा है उसमें राई डाली है, राई वाला पानी डाला है, तो उसी को फिर दोबारा हाथों से मलें। हाथों से मलेंगे तो जो भी पारा राई को चमटा हुआ होगा वो पानी से अंदर यानी पतीले में बैठ जाएगा, राई फिर दोबारा। यानी कि इसको ऐसा करते करते ये बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। हमारे तो कभी कभी 5 घंटे भी इसमें को सफाई करते करते लग जाते हैं। अभी जहन में रखना है कि अगर आपने कुछ लायानी की, यानी कि आपने कुछ सुस्ती की, तो आपका पारा कम हो जाएगा, वो राई के साथ निकल जाएगा। अगर आप एहतियात करेंगे तो पारा आपका ज़ाया नहीं होगा। जो कचरा है वो तो ज़ाया होगा, लेकिन इतना पारा कम नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर राई जो है वो निकाल दें पानी से, पानी भी बहा दें। दूसरे पतीले में भी आप देखेंगे कुछ न कुछ रेत की तरह वो पारा पड़ा है,
جو آپ ریت سمجھ کر اس پارے کو ضائع کر دیں. لوگ تو ایسے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا نقصان کم سے کم ہو. ابھی ان دونوں پتیلوں والے جو پارا ہے ریت کی طرح، اگر اس کو کھرل میں ڈالیں یا اسٹیل کے برتن میں کٹوری میں ڈال کر تھوڑا دھوپ پر رکھیں یا تھوڑا سا آگ کا سیک دیں گے تو یہ پارا اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا. زیادہ آگ نہیں دینی، اگر زیادہ آگ دو گے تو پارا اڑ جائے گا. آپ اسٹیل کے برتن میں رکھ کر تھوڑا سا آگ یعنی کہ تیز دھوپ جیسی آگ دیں تو یہ پارے کا پانی جب ہی خشک ہوگا یہ پارا اپنی اصلی شکل میں آپ کو ملے گا. اب اس کا وزن کرنا ہے. آپ نے 10 تولے رکھا تھا، ابھی دیکھو کہ آپ نے پارا ضائع کتنا کیا ہے اور آپ کو پارا ملا کتنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ رائی ڈالنی ہے اسی پارے میں کھرل کر کے جتنا وزن پارے کا ہو اتنی رائی ڈالنی ہے. پھر دوبارہ اس کو کھرل کرنا ہے. رائی جب کالی ہو جائے گی تو پھر اس میں سرکہ ڈالنا ہے. سرکے کے بعد پھر اسی طریقے سے اس پارے کو رائی سے علیحدہ کرنا ہے. 3 بار یہ عمل کریں گے تو میں تو سمجھتا ہوں 1 تولہ تو آپ کا ضائع ہو ہی جائے گا. جو بہت بڑے کاریگر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان میں سے وہی پارا ضائع ہوتا ہے. صرف جو اس میں کچرا ہوتا ہے وہ کچرا نکال لیتے ہیں، بقایا جو پارا ہے وہ اپنا حاصل کر لیتے ہیں. ایک دوست نے کیا تھا یہ عمل، لیکن وہ 5 تولے یعنی 10 تولے رکھا تھا تو اس کو تقریباً 6-7 تولے ملا، باقی 3 تولے جو ہے اس نے رائی میں بہا دیے تھے. یہ آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا پارا ضائع نہیں ہوگا، اگر بے احتیاطی کریں گے تو یہ پارا آپ کا ضائع ہو سکتا ہے. لیکن آدھا تولہ سے 1 تولہ تک یہ اس میں کچرا ہوگا 10 تولے میں، وہ احتیاط کریں گے تو وہ جائے گا تو جائے گا، ورنہ آپ کا پارا بسلامت آپ کو 9 تولے سے 9.5 تولے تک آپ کو مصفہ کیا ہوا پارا. اب یہ بھوکھا بھی ہے اور یہ پارا مصفہ بھی ہو گیا ہے. ابھی اس پارے کو رکھ دیں. ابھی آپ کو اس پارے کی بنانی ہے چاندی، نکرا بنانا ہے. اب آپ کا دیکھیں کہ آپ کا کتنا وزن ہے، یعنی اگر 9 تولے ہے تو آپ 3 تولے 3-3.5 تولے آپ نے چاندی اصل لینی ہے جو ملاوٹ سے بالکل پاک ہو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ پارا مصفہ کیا ہوا کسی شاپر میں ڈال کر یا کسی ڈبی میں ڈال کر آپ رکھ سکتے ہیں، پڑا رہے گا. ابھی اس میں جو بھی کچرا ہے وہ نکل. اب آپ ایسا کریں گے کہ آپ چاندی جو نہار کی ہوئی سنار سے پاؤڈر لیں، آپ کی مرضی ہے، یا تو پاؤڈر لے کر اس کو چرخ دے دیں. 3.5 تولے ہونی چاہیے. اگر 9.5 تولے ہے یا مثال کے طور پر جتنی چاندی جتنا پارا ہے اس کے آدھے وزن جتنی آپ نے چاندی لے لینی ہے. اب اس چاندی کا پترا بنانا ہے. پہلے تو اس کو چرخ دیں گے، صاف ہو چاندی میں ملاوٹ ہوگی تو نسخے میں غلطی آ جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چاندی جو ہے بالکل گارنٹی شدہ صاف مصفہ لینی ہے. اگر اس میں کوئی چیز اور ملی ہوئی ہوگی تو نسخہ آپ کا غلط ہو سکتا ہے. اگر کوئی چیز اگر نہیں ملی ہوئی تو یہ ہماری گارنٹی ہے کہ نسخہ بالکل میں نے سچ ہی بتا دیا. خدا کو حاضر ناظر جان کر میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا. اب 10 تولے آپ کی مصفہ پارا ہے تو 5 تولے چاندی لینی ہے، اس کا پترا بنانا ہے. پترے کے نیچے کسی پکی ہوئی چیز پر رکھیں، یعنی کہ ٹھیکری وغیرہ پر رکھ دیں چاندی. جو آپ کی 5 تولے ہے تو 5 تولے پسی ہوئی گندھک نیچے اس کے چاندی کے نیچے بچھا دیں پاؤڈر. اس کے اوپر چاندی والا پترا رکھ دیں، یعنی کہ 3 ٹکڑے کر کے 4 ٹکڑے کر کے رکھیں چاندی. ایک ہی ٹکڑا ثابت نہیں رکھنا. اچھا، اگر 5 تولے ہے تو اس کو 3 ٹکڑے کر دیں، 3 ٹکڑے میں بانٹ دیں.
3 टुकड़े हों पतरे, उसको नीचे ये यानी कि 5 तोले पिसी हुई गंधक रख दे। उसके ऊपर अच्छे तरीके से, अच्छे बेहतरीन तरीके से, जैसे कि चांदी के पतरे रखें तो गंधक के ऊपर पड़े, नीचे ना हो। उसके ऊपर फिर 5 तोला गंधक पिसी हुई चांदी के ऊपर रख दे। यानी 5 तोला चांदी के टुकड़े हैं तो 10 तोला आपकी गंधक हो, जो 5 तोले नीचे चांदी के आ जाए, और बीच में चांदी के ऊपर फिर 5 तोले गंधक पिसी हुई रख कर ऊपर थोड़ा सा ढक्कन दे या नहीं दे, जो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो अच्छे तरीके से आप रख दें। नीचे 1 किलो ओपले जंगली रख दें। उसके ऊपर वो ठिकरी जो आपकी बनी हुई है गंधक वाली और चांदी वाली, उसके ऊपर अच्छे तरीके से जमा कर रख दे। उसके ऊपर 1 किलो ओपले ऊपर छोटे छोटे टुकड़े करके रख दे। आग लगा दे, आग जलती रहे आग बिल्कुल वो, लेकिन थोड़ा घरों से थोड़ा दूरी पर करनी है, क्योंकि गंधक की जो है खुशबू घरों में आती है, लोगों को खांसी होती है। यानी घर के अंदर काम नहीं करना, घर से बाहर करना है। अच्छा, 2 किलो आग दे आप, निगाह रखें, छोड़ ना दें, क्योंकि चांदी है, कोई ले ना जाए। जब ये बिल्कुल आग ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल आग ठंडी, याद रहेगा कि ये आग जलती रहे, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए ओपले बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। अगर गीले होंगे तो ये नुकरा आपका काले रंग का मिलेगा। अगर खुश्क हुए होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, आग जलती रहेगी, तो ये जो आपका नुकरा है चांदी है, ये आपको सफ़ेद रंग की मिलेगी। अगर काले टुकड़े जो है चांदी के रंग का काला मिले तो समझें आग आपकी कम आई है, थोड़ी आ गई है, ये आपकी गलती होगी। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि ये ओपले बिल्कुल खुश्क हों और आग जलती रहे, बुझने ना पाइए। जैसे भी आग लगाए, हो सकता है थोड़ा मिट्टी का तेल भी उस ओपलों के ऊपर डाल दे, यानी कि आग बहुत तेज़ की लगे। ये गंधक जो है आपकी चांदी को भूखा करेगी। उधर पारा आपने राई से भूखा किया, इधर जो है आपने चांदी के टुकड़े जो हैं ये गंधक से भूखे किए। याद रखे, दोनों चीज़ें भूखी हैं, जब आपस में मिलेंगे तो बिल्कुल आपस में जैसे मकनातीस और लोहा मिलता है, आपको खींचेंगी इसको। अब ये चांदी का मरहला भी पूरा हो गया। अब आप ऐसा करें, जब आग ठंडी हो जाए चांदी के टुकड़े निकाल लें। अगर काले हैं तो ये आप आग की कमी की है, इसी वजह से गंधक पूरी नहीं जली, इसलिए ये काले रह गए हैं। काले नहीं, थोड़े थोड़े से चुटके जो है ना काले होते हैं ऐसे चांदी में, लेकिन होती सफ़ेद रंग की, जैसे चांदी का रंग है अपना ऐसे होता है। अभी इसको वज़न करना है, चांदी का वज़न करना है, गंधक से निकाल कर फिर चांदी का वज़न करना है। देखे कि 5 तोले है या 5 तोले से बढ़ गई है, क्योंकि गंधक अगर नहीं जलाया इसको तो गंधक इसमें खड़ी है, रुकी हुई है, आपने आग थोड़ी दी है। अगर उस चांदी का वज़न आधा ग्राम ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, या तो बराबर हो जाएगा, जितनी आपने चांदी रखी थी उतना ही वज़न है तो आप खुश नसीब है। अभी चांदी निकाल लें, चांदी को बार बार हाथ न लगाएं, चांदी को कागज़ के टुकड़ों पर रख दें। अगर बार बार हाथ लगाएंगे तो ये चांदी आपकी पारे को कैच नहीं करेगी, ये भी याद रखना, बार बार हाथ नहीं लगाना है। अब चांदी भी आपकी तैयार हो गई, पारा भी तैयार हो गया। अब इस पारे को ही चांदी बनानी है। छोटी बोतलें, बड़ी बोतल कभी नहीं रखनी। छोटी बोतलें होती हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो छोटी सी बोतलें, थोड़ा सा उसको कपड़ों टीका लें, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी लगाकर सूती कपड़े को इसके गले तक वो थोड़ी सी यानी कि ये जो कपड़ा है वो लपेट दें बोतल को। अब इस बोतल में आपने 1
तोला चांदी का टुकड़ा रखना है, 2.5 तोले उसमें पारा रखना है। दूसरी बोतल को भी ऐसी कपड़ोटी करके उसमें 1 तोला चांदी रखनी है, 2.5 तोला उसमें पारा रखना है, भूखा पारा जो। अच्छा, तीसरी बोतल में ऐसे करेंगे। चौथी बोतल यानी छोटी छोटी बोतलें हों, छोटी छोटी बोतलें मिलती हैं जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में से वो बड़ा इंजेक्शन होता है बुखार के लिए, या वो बोतल किसी खाली पड़ी होती है डॉक्टरों के पास, उसको थोड़ा सा पानी से साफ़ करें, कपड़ा लगाएं और कपड़ा लगा कर वो बोतलें ले आए। उसको कपड़ोटी करनी है, यानी कि थोड़ी सी मट्टी कपड़े को लगाकर, वो सूती कपड़े हो, सूती कपड़े को जो उसी बोतल के बाहरी हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में आप लपेट देना है। 2-3 चक्कर देंगे तो ये बोतल टूटेगी नहीं आग में। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अभी आप छोटी सी कढ़ाई ले लें, उस छोटी सी कढ़ाई में रेत यानी 2 से 1.5 इंच से 2 इंच नीचे की तरह, नीचे की तह में बिछा दें। उसमें ये बोतलें नज़दीक नज़दीक करके खड़ी कर दें। और ये जो बोतलों का मुंह है, कपास रुई से दबा कर इनके मुंह बंद कर दें, यानी कि चांदी के टुकड़े भी अंदर हैं, पारा भी अंदर है। एहतियात करें कि पारा और चांदी अलहदा ना खड़े हों, पारा और चांदी आपस में मिले खड़े हों। अच्छा, आप इनका मुंह जो है रुई से बिल्कुल बंद कर दें। आप 4 बोतलें खड़ा करेंगे, 3 खड़ी करेंगे, जो भी आपका बर्तन है उसी में रेत में खड़ा करके, फिर रेत पासों में आसपास जो है रेत में इतनी रेत भर दें कि सिर्फ मुंह जो है इन बोतलों का बच जाए, बकाया उनके जिस्म जो है बोतलों के रेत में दबे जाए। अभी ये मरहला पूरा हो गया। अभी आप 3 किलो गैस सिलेंडर में गैस भरवा दें। किसी बंद कमरे में आप वो कढ़ाई रखें जिसमें बोतली पड़ी है, वो इसके गैस के सिलेंडर के ऊपर रखें और आग लगा दें, आग जला दें। आग इतनी हो जो अगर कुछ तेज़ हवा चले तो आग बुझ जाए। इसलिए मैं कमरे के अंदर आपको बता रहा हूँ। कमरे के अंदर होगी, दरवाज़ा बंद होगा तो कोई बात नहीं, अंदर हवा नहीं आ रही तो आप नीली आग जले और पीले रंग की आग उसी सिलेंडर से ना निकले, उसके ऊपर ये कढ़ाई और बोतलें रख कर छोड़ दें। आप आधे घंटे तक इंतज़ार करें कि आग या तो किसी सिलेंडर में ख़राबी होती है, बढ़ जाती है, या आग बुझ जाती है। देखेंगे जब आग आपकी टिक चुकी है, यानी उसी रफ्तार में जो नीली आग है, बिल्कुल ज़ीरो आग जलानी है, ज़ीरो के पर रखना है सिलेंडर को। जब आपका सिलेंडर बिल्कुल ज़ीरो की जगह आधे घंटे तक रहेगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब आप दरवाज़ा बंद करके आपको जहाँ काम है चले जाना, चले जाओ। लेकिन इसको 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा चेक करना है कि आग बुझ तो नहीं गई या आग बढ़ तो नहीं गई। बढ़ने नहीं देनी, उतनी ही आग यानी ज़ीरो के लेवल पे खड़ी हो। अभी चलने दें, टाइम को देख लें कि आपने किस टाइम को आग जलाई है। ये आग आपकी मुसलसल 60 घंटे तक चले, इसी स्पीड में, ज़्यादा नहीं करनी। जब 60 घंटा हो जाए, गुजर जाए, तो थोड़ी सी आग बढ़ानी है। जैसे कि अंडा पक जाए, अंडे से भी कुछ ज़्यादा कर देनी है। जब 65 घंटा गुजर जाए तो कुछ और आग बढ़ा देनी है। जब 70 घंटा हो जाए तो कुछ थोड़ी सी आग कुछ ज़्यादा करनी है। 75 घंटे तक ये आग जलती रहे। जब 75 घंटा पूरा, जो आपने ऐसा नहीं करना कि इस दौरान में आप किसी बोतल को उठाएंगे, आप रेत से निकालेंगे तो ये बोतल टूट जाएगी, आपका सामान खारिज हो जाएगा। बोतल को कभी नहीं निकालना।
बिल्कुल उसी रेत में पड़ी रहे, आग जलती रहे। 72 घंटे के बाद 75 घंटे तक आग जली, फिर आग को बंद कर देना है, छोड़ देना है। जब आग ठंडी हो जाएगी तो आप उस बोतलों का मुंह खोलेंगे एहतियात से। कुछ कच्चा पारा जो है 2 ग्राम से 1 ग्राम तक उसी कपास में जो रुई आपने मुंह में डाली है उसी रुई में पड़ा होगा। अगर रुई ऐसे खींच कर निकाल लेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो ये कच्चा पारा आपका ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये पारा आपको महफूज करके रखना है। कपास को निचोड़ेंगे, रुई को निचोड़ेंगे तो उनमें से भी कुछ न कुछ पारा निकलेगा। बकाया जो पारा है, बकाई जो पारा है वो चांदी को ऐसे चिमटा होगा कि आप के पास वो चांदी जो निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगी। जब तक बोतल न तोड़ोगे तब तक ये पारा और चांदी बाहर नहीं निकलेगी, एक ही जुट होकर पड़े रहेंगे उधर। अब एहतियात से बोतल को तोड़ना है, नीचे कोई कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर रख थोड़ा सा कोई चीज़ लगाएंगे तो ये बोतल है टूट जाएगी। मट्टी जो लगी है उसको दूर कर दें, शीशा दूर कर दें। आपकी ये 3.5 तोले एक बोतल में पारा और चांदी, 1 तोला पारा और 2.5 तोले या 2.25 तोले बिल्कुल आपकी चांदी बनी पई होगी। आपकी चांदी मिलेगी, हर बोतल में से आपको मिलेगी। 5 बोतलें रखी है, जितनी चांदी है उससे डबल पारा आपको मिलेगा। यानी 1 तोले चांदी को 2.25 तोले पारे की चांदी आपको मिलेगी। अच्छा, उसको कुछ पारा कच्चा अगर हो, शक हो किसी में थोड़ा सा पारा कच्चा रह गया है तो उसको छुरी से आपको उसको साफ कर लें। कच्चा पारा जो होगा आपका नीचे आ जाएगा, किसी कपड़े में रख दे। और बकाया सारी आपकी चांदी बनी पई बिल्कुल चांदी होगी। जो छेनी से काटेंगे तो कटी जाएगी, वरना ऐसे नहीं। ये चक्कर भी खाएगी, चरखाओगे तो चरख भी खाएगी। ये चांदी करके हमने बेची भी है। अगर आप ऐसे करेंगे, ये कमर तो बन गई, आपकी कमर बन गई। आप जेवर बना सकते हैं, बेच सकते हैं, सुनारा बिल्कुल खुशी से ले लेता है। अगर इसी कमर को आपने बनाना है शम्स, ये दूसरा स्टेप है। इसी चांदी का शम्स बनेगा, गारंटी से बनेगा। और दूसरी वीडियो में मैं जो आपको इसी चांदी को सोना बनाऊं वो मैं आपको बात करूंगा। तो एक ही दिन में ये सारी चांदी सोना भी बन सकती है। जो आपने ये बनाई 3 दिन तो आपको लग गए, लेकिन ये अभी चांदी बनी है, पारे की चांदी है। बिल्कुल सफ़ेद होगी, बिल्कुल बेहतरीन होगी। चरख देखो, सुनारे को बेचेंगे तो सुनारा ले भी जाएगा, बिल्कुल खुशी से लेगा, बेहतरीन होगी। लेकिन हमने चांदी को क्या करना है, ये 9-9.5 तोले या 10 तोले चांदी बनी तो हमारे काम की नहीं है। जब ये शम्स बन जाए तो बात बनती है। इधर आपको मैं दूसरी वीडियो में इसी चांदी को शम्स बनाने का तरीका आपको